کہتے ہیں کچھ گھر کبھی مکمل خاموش نہیں ہوتے۔ ان کے کچے صحن، پرانے در و دیوار اور صدیوں پرانے درختوں میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو سانس لیتا ہے، دیکھتا ہے اور کبھی کبھار محبت بھی کرتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک گاؤں کی آخری گلی میں بنے کچے مکان کی، جہاں ایک لڑکی کرن اپنے بیمار والدین کے ساتھ غربت، خاموشی اور پرانے انار کے درخت کے سائے میں زندگی گزار رہی تھی۔ مگر وہ درخت صرف درخت نہیں تھا، وہ صدیوں پرانا گواہ تھا، ایک جناتی سائے کا، ایک چھپی محبت کا اور ایک ایسی قربانی کا جو کسی نے نہ صرف خاموشی سے نبھائی۔ یہ کہانی ہے اس سائے کی جو کرن کی زندگی کا رنگ بن گیا، اور ایک ایسا لمس جو چھوئے بغیر بھی دل میں بس گیا۔ تو آئیے آپ کو کہانی کی تفصیل میں لیے چلتے ہیں۔ گاؤں کی آخری گلی پر جھاڑیوں سے گھرا ایک پرانا کچا مکان کھڑا تھا۔ بارش کے بعد کیچڑ سے لتھڑا ہوا راستہ جیسے صدیوں پرانی کسی خاموشی کی گواہی دے رہا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں کرن اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ غربت نے ان کے چہروں پر وقت سے پہلے جھریاں ڈال دی تھی، لیکن کرن کی بڑی بڑی آنکھوں میں اب بھی خواب باقی تھے۔ اس کچے مکان کے صحن میں ایک بہت بڑا انار کا درخت تھا، نہایت پرانا، جس کی شاخیں آسمان کو چھوتی دکھائی دیتی تھی۔ درخت پر ہر موسم میں سرخ انار لگتے جیسے خون کی بوندیں، لیکن کوئی انار توڑنے کی ہمت نہ کرتا۔ گاؤں کے بوڑھے لوگ کہتے تھے یہ درخت جنات کا ہے، اس پر سایہ ہے۔ کرن جب چھوٹی تھی تو اپنی ماں سے اکثر پوچھا کرتی، اماں یہ درخت اتنا خاموش کیوں ہے؟ کبھی پرندے بھی اس پر نہیں بیٹھتے؟ ماں ہمیشہ ڈر کے مارے خاموش رہتی اور صرف اتنا کہتی، بیٹی ان باتوں کو مت چھیڑ، یہ درخت زندہ ہے۔ ایک رات بارش زوروں پر تھی، بادلوں کی گرج، بجلی کی کڑک اور ہر طرف سناٹا۔ کرن کھڑکی کے پاس بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی۔ اچانک اسے درخت کے نیچے کوئی سایہ نظر آیا، لمبا، کالا، ساون کی اندھیری رات جیسا۔ وہ سایہ بس دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلی نظر تھی اور پہلی دہشت، لیکن کرن کو نہیں معلوم تھا کہ یہ سایہ اس کی قسمت بدلنے آیا ہے۔ بارش کی وہ رات جیسے کبھی ختم ہی نہ ہو رہی تھی۔ چھت سے پانی ٹپک رہا تھا اور مٹی کی دیواریں ٹھنڈ میں تھر تھرا رہی تھی۔ کرن کی ماں لحاف میں لپٹی سوئی ہوئی تھی، باپ کی کھانسی مسلسل گونج رہی تھی، لیکن کرن کی آنکھیں کھڑکی سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ درخت کے نیچے کھڑا وہ سایہ اب واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ہلا بھی نہیں، بس دیکھتا رہا۔ کچھ لمحے گزرے اور پھر اچانک کرن کو لگا جیسے کوئی اس سے بات کر رہا ہو، بغیر ہونٹ ہلائے، بغیر زبان کے۔ دل میں اترتی ہوئی ایک سرگوشی، کرن تم مجھے دیکھ سکتی ہو؟ کرن کی روح جیسے کانپ گئی۔ اس نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن قدم جیسے زمین سے چپک گئے ہوں۔ آواز دوبارہ آئی، مت ڈرو کرن، میں تمہیں نقصان نہیں دوں گا۔ کرن نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی اور تھر تھرا کر بستر میں چلی گئی۔ لحاف اوڑھ کر وہ دیر تک کانپتی رہی، لیکن سوتے ہوئے بوڑھے ماں باپ کی سانسوں کے سوا کچھ سنائی نہ دیا۔ اگلی صبح جب کرن اٹھی، صحن میں بارش کے قطرے مٹی میں جذب ہو چکے تھے، مگر انار کے درخت کی ایک شاخ زمین پر گری ہوئی تھی اور وہاں ایک کالا سا پر پڑا تھا، کالا چمکدار، جیسے کسی پرندے کا نہ ہو۔ کرن نے پر کو اٹھایا تو اسے ایک ہلکی سی خوشبو محسوس ہوئی، کسی ایسی خوشبو کی جو جانی پہچانی ہو لیکن کہیں کبھی ملی نہ ہو۔ تبھی اس کے پیچھے ماں کی آواز آئی، کرن اس پر کو ہاتھ مت لگانا، یہ کسی جن کا پر ہے۔ کرن چونک کر ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ ماں کی آنکھوں میں خوف کی ایک پرانی دبی ہوئی چمک تھی، جیسے وہ ماضی سے کچھ جانتی ہو اور وہ اب راز چھپا نہ پا رہی ہو۔ کرن کی انگلیوں میں اب بھی وہ کالا پر موجود تھا، جیسے کسی اندیکھے سحر نے اسے چھو لیا ہو، مگر ماں کی آواز میں اتنا خوف تھا کہ اس نے جھٹ سے پر زمین پر پھینک دیا۔ یہ کیا تھا ماں؟ یہ درخت، یہ پر، وہ سایہ؟ کرن کی آواز میں لرزش تھی اور آنکھوں میں تجسس۔ ماں کچھ لمحے خاموش رہی، جیسے وہ فیصلہ کر رہی ہو کہ سچ بتائے یا نہیں۔ پھر آہستہ سے بولی، اس درخت پر ایک جن کا سایہ ہے کرن، بہت پرانا جن، بہت طاقتور، لوگ اسے زمرد کہتے تھے۔ کرن نے حیرت سے پوچھا، زمرد؟ ماں نے اس بات میں سر ہلایا، جب میں تمہاری عمر کی تھی تو میں نے بھی ایک بار اسے دیکھا تھا۔ وہ ہر اس لڑکی کو دیکھتا ہے جو تنہا، معصوم اور غم زدہ ہو۔ وہ دلوں کو پڑھ لیتا ہے، خاموش آنکھوں کی چیخیں سن لیتا ہے۔ پھر کیا ہوا تھا ماں؟
माँ की आंखों में खौफ की परछाइयाँ उभर आई। मैंने एक रात ख्वाब में उससे बात की और अगली सुबह मेरी छोटी बहन बेहोश मिली। वो दरख्त के नीचे पड़ी थी, उसकी आंखें खुली थी और होंठों पर एक लफ्ज़ था, ज़मरद जिन। किरण की सांस रुक गई। फिर वो बची कि नहीं? माँ ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। नहीं, वो कभी वापस नहीं आई। जिस्म तो था मगर रूह शायद वो जिन ले गया था। किरण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कल रात जिस साय ने उसे देखा था, क्या वो ही ज़मरद जिन था? क्या वो अब उसके ताक़ब में है? उसी लम्हे बाहर दरख्त से कुछ फड़फड़ाने की आवाज़ आई। किरण तेजी से दरवाजे की तरफ लपकी। अनार का दरख्त खामोश खड़ा था, लेकिन एक शाख पर वही काला पर अब वापस शाख पर जुड़ा हुआ था, जैसे कभी गिरा ही ना हो। और नीचे मिट्टी में किरण के नाम से बनी एक लकीर, जैसे किसी ने नाखून से जमीन पर सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा हो, किरण। उस रात किरण की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। वो लिहाफ में लेटी दरवाजे की दराजों से आती हवा की सरसराहट सुन रही थी। हर आहट, हर सुनाटा उससे कुछ कहता महसूस होता। माँ बाप सो रहे थे, अंधेरी रात गुजर रही थी, मगर किरण के दिल में उजाला या अंधेरा कुछ तय नहीं हो रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कान के करीब आकर बोला, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा किरण, मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ। किरण घबराकर उठ बैठी, मगर कमरे में कोई ना था, सिर्फ अंधेरा और टूटती हुई सांसें। आखिर कौन हो तुम? उसने आहिस्ता से कहा। फिर एक आहट, जैसे सहन में कोई चहलकदमी कर रहा हो। किरण दबे पांव दरवाजे तक आई और दराज से बाहर झांका। अनार के दरख्त के नीचे कोई खड़ा था, वही साया, लेकिन इस बार वो सिर्फ खड़ा न था, वो कुछ पढ़ रहा था, धीमी गूंजती जुबान में। ये कोई आम जुबान ना थी। उसके हर लफ्ज़ के साथ किरण के दिल में एक अजीब सा सुकून और खौफ एक वक्त उतरने लगा। अगले लम्हे साया गायब हो गया। किरण ने दरवाज़ा खोला और सहन में आई। अनार के दरख्त के नीचे अब कुछ नहीं था, सिवाय एक छोटे से शीशे के तवीज़ के, जो ज़मीन पर चमक रहा था, जैसे कोई तोहफा हो या जाल। किरण ने हिचकिचाते हुए तवीज़ उठा लिया। तभी अचानक दरख्त की एक शाख हिली और दरख्त की गहराइयों से एक सर्द सी सरगोशी निकली। अब तुम मेरी हो किरण। किरण के हाथ में वो शीशे का तवीज़ अब गर्म हो रहा था, जैसे किसी अंदरूनी आग ने उसे जला डाला हो। वो तेज़ी से कमरे में वापस आई, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने तवीज़ को चद्दर में लपेट कर संदूक में रख दिया, लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में गूंजता रहा, क्या वाकई वो जिन वो मुझे चाहता है क्या? सुबह हुई, मगर किरण की आंखों में नींद का नामो निशान न था। वो खामोश रही, न माँ से कुछ कहा, न बाप से। उसकी आंखें बार बार दरख्त की तरफ उठ जाती। दोपहर के वक्त जब माँ पानी भरने नदी की तरफ गई और बाप मस्जिद चला गया, तो किरण अकेली रह गई। जैसे ही उसने तवीज़ दोबारा हाथ में लिया, वही सरगोशी एक बार फिर से सुनाई दी, किरण मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हें उस दर्द से बचा सकता हूँ जो तुम्हारे नसीब में लिख दिया गया है। किरण की आंखों में आंसू आ गए। कौन हो तुम? तो मेरे दुख कैसे जानते हो? चंद लम्हे खामोशी रही, फिर फिजा में धीमी सी आवाज़ गूंजी, मैं ज़मरद जिन हूँ, इस दरख्त का निगहबान और तुम्हारे दिल का राजदार। किरण साकत खड़ी रह गई। ज़मरद ने फिर कहा, तुमने जन्म से ही सिर्फ महरूमियाँ देखी हैं किरण, मगर अब नहीं। मैं तुम्हें दुखों से आज़ाद करने आया हूँ, मगर इसके बदले तुम्हें एक फ़ैसला करना होगा। कैसा फ़ैसला? किरण की आवाज़ जैसे लरजती शाख हो। ज़मरद जिन बोला, ये दुनिया या मेरी दुनिया, तुम्हारे माँ बाप या मैं? किरण के वजूद में लरसा तारी हो गया। ये वो मुकाम था जहाँ जज्बात, वफा और मोहब्बत के दरमियान एक खूनी लकीर खींची जा रही थी। ज़मरद की आवाज़ अब और भी करीब आ गई। फ़ैसला तुम्हारा है किरण, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम अब मेरे ज़ेरे साया हो, हमेशा के लिए। किरण ने आंखें बंद कर ली और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। दरख्त की शाखें हिली, जैसे किसी ने उस पर हाथ रखा हो, और आसमान की खामोशी में बस एक ही जुमला गूंज रहा था, ज़मरद जिन ने वादा किया है। किरण जब होश में आई तो रात का पहर था। कमरे में अंधेरा, माँ बाप दूसरे कमरे में सोए हुए, और उसके हाथ में वही तवीज़ मौजूद था, जैसे वो कभी गिरा ही ना हो। उसके दिल की धड़कन अब नॉर्मल हो चुकी थी, मगर अंदर एक अजीब सी कैफियत थी। खौफ नहीं, बल्कि जैसे कोई खामोशी से उसके अंदर बस चुका हो।
वो जैसे ही आंखें बंद करती एक चेहरा दिखाई देता, धुंधला सा लेकिन आंखें साफ, गहरी सबज चमकदार आंखें जिनमें कोई सदियों पुराना दुख भी था और बेकिनार मोहब्बत भी। उसी रात किरण ने एक ख्वाब देखा। वो एक अजनबी बाग में खड़ी थी जहाँ हजारों अनार के दरख्त थे। हर दरख्त से रोशनी फूट रही थी और अनार खून जैसे सुर्ख थे। दरमियान में एक बुलंद संगे मरमर का तख्त था जिस पर वो साया बैठा था। किरण उसके करीब पहुंची तो उसने नकाब हटा दिया। वो ज़मरद जिन था, सफ़ेद चमकती आंखें, स्याह बाल, गहरी सबज आंखों में उदासी और चेहरे पर ऐसा हुस्न जो इंसानों का ना लगे। मैंने तुम्हें बुलाया है किरण, ये मेरा आलम है, यहाँ वक़्त नहीं, दर्द नहीं, सिर्फ मैं हूँ और अब तुम। किरण का दिल ज़ोर से धड़का। क्या ये ख्वाब है? ये बात सुनकर ज़मरद जिन मुस्कुरा दिया। तुम्हारे लिए ख्वाब मगर मेरे लिए हकीकत। तुमने मेरा तवीज़ उठाया है, अब मैं तुम्हें दुखों से बचाऊंगा, हर उस ज़ख्म से जो तुमने सह रखा है। किरण ने एक लम्हे के लिए खुद को हल्का महसूस किया, जैसे वाकई वो दुनिया के बोझ से आज़ाद हो गई हो। मगर मेरे माँ बाप, ज़मरद की आंखों में एक साया सा उतर आया। उनकी तकदीर अलग है किरण, तुम अगर मेरे साथ चली आओ तो तुम्हें वो सब मिलेगा जो कभी तुमने सोचा भी ना था, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी पुरानी दुनिया को छोड़ना होगा। किरण ने पीछे देखा, वहाँ कुछ ना था, सिर्फ अंधेरी धुंध और सामने ज़मरद का हाथ। चलो किरण, वक़्त कम है। किरण का दिल धड़कने लगा। क्या वो इस इश्क की तरफ कदम बढ़ाए? क्या वो ज़मरद की दुनिया कबूल करे? अचानक ख्वाब टूटा और किरण हाँफती हुई जाग गई। दरख्त के नीचे अब की बार ज़मरद खुद खड़ा था। रात की घनी तारीकी में जब किरण जागी तो कमरे में कोई रोशनी न थी, मगर खिड़की के बाहर दरख्त के नीचे कुछ चमक रहा था। उसने आहिस्ता से खिड़की खोली और जो मंजर उसने देखा वो उसकी सांस रोक देने के लिए काफ़ी था। अब ज़मरद जिन वो हकीकत में मौजूद था। स्याल बास, कद लंबा, चेहरा आसमानी उजाले जैसा और आंखें वही सबज आंखें जो ख्वाब में दिखती थी, अब सामने खड़ी थी। किरण का दिल जैसे एक लम्हे को रुक गया। ज़मरद ने आहिस्ता से सर उठाया और नजरें मिलाई। वक़्त थम सा गया। तुम जाग रही हो किरण, जैसा मैं चाहता था। किरण के होंठ कपकपाए। तुम ख्वाब में थे, तुम हकीकत नहीं हो। ज़मरद चंद कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ किसी गार से गूंजती आती लग रही थी। मैं एक हकीकत हूँ किरण, बस तुम्हारी दुनिया में नज़र नहीं आता। अब जब तुमने तवीज़ छुआ, मुझे पुकारा, तो मैं तुम्हारे सामने हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। किरण की आंखों में आंसू बाहर आए। पर मुझे ही क्यों? मैं तो सिर्फ एक गरीब खामोश सी लड़की हूँ। तुम जैसे जिनके लिए क्या मैंने रखती हूँ। ज़मरद ने सर झुका लिया। उसकी आंखों में पहली बार नरमी और दर्द उतर आया। क्योंकि तुम्हारी खामोशी मेरे दिल की आवाज़ बन गई है। तुम्हारे आंसू मेरे सीने में जलते हैं। तुम जिस तकलीफ़ में जीती हो वो मुझे बुलाती है। तुम मेरी हो किरण, इस ज़मीन पर मेरी अमानत। ये बात सुनकर किरण की आंखें फैल सी गई। अमानत? उस जिनज़ाद ने हाथ फैलाया। आओ, मेरा हाथ थामो। मेरे आलम में वक़्त रुका हुआ है, कोई दुख नहीं, कोई जुदाई नहीं। तुम माँ बाप को रोज़ ख्वाब में देखोगी, लेकिन कभी रोगी नहीं। किरण की सांसें टूटने लगी। वो एक पल को सब कुछ भूल गई, गुर्बत, दुख, तन्हाई, और सिर्फ उसकी आंखों की गहराई में डूबती गई। लेकिन तभी माँ की आवाज़ सुनाई दी, किरण, पानी। किरण का दिल लर्ज़ गया। जिनसाद खामोश हो गया। उसकी आंखों में दुख की लहर आई, जैसे वो जानता हो ये फैसला आसान नहीं। तुम्हें अख्तियार है किरण, या मैं या वो दुनिया जो तुम्हें कभी नहीं समझ सकी। किरण पलटकर अंदर दौड़ी, माँ को पानी दिया। माँ ने उसके माथे को चूम लिया और उस लम्हे किरण के दिल में एक जंग शुरू हो गई। जिनसाद या माँ की दुआएं, मोहब्बत या इंसानी रिश्ते। दरवाजे के बाहर जिनसाद अब भी मुंतज़िर खड़ा था, चुप मगर हर लम्हा पुकारती आंखों के साथ। किरण रात भर जागती रही। जिनसाद की बातें उसके दिल में गूंजती रही, मगर माँ की ठंडी सांसों और बाप के कांपते हाथों का लम्स उसकी आंखों में ठहर गया। सुबह हुई। कच्चे आंगन में सूरज की पहली किरण पड़ी। अनार के दरख्त की छाँव धीरे धीरे ज़मीन पर फैलने लगी। दरख्त जैसे खामोश नज़रों से किरण को तक रहा था। किरण ने माँ के साथ नाश्ता तैयार किया, बाप की दुआई निकाली और ख़ुद खामोशी से पानी के घड़े के पास बैठ गई। उसकी आंखें बेनूर हो चुकी थी, मगर अंदर कोई जंग अब भी जारी थी। तभी दरख्त की शाखें एक बार फिर हिली।
जिनसाद की आवाज़ इस बार आसमान से आई, ना ख्वाब से बल्कि सीधी उसके दिल में गूंजी। तुमने फैसला कर लिया किरण? किरण के होंठ पीछे, दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर मैं तुम्हें चुन लूँ तो मेरे माँ बाप वो सलामत रहेंगे किरण। मैं उनकी हिफाजत करूँगा, मगर तुम उनसे जिस्मानी तौर पर अलग हो जाओगी। और अगर मैं तुम्हारे साथ ना गई, जिनसाद की आवाज़ में एक साया सा लर्ज किया, तो मैं हमेशा के लिए वापस चला जाऊँगा और तुम्हारी ज़िंदगी वही बन जाएगी जैसी है, तन्हाई, गुर्बत और वो दुख जो तुम सदियों से सहती आई हो। किरण की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर अनार के दरख्त की जड़ों की तरफ। वहाँ कुछ चमक रहा था। वो उठकर दरख्त के करीब गई और जड़ों में झांका। वहाँ एक और तवीज़ दफन था, पुराना स्या, जैसे सदियों से मिट्टी में गुम हो, मगर उस पर किरण का नाम लिखा था। किरण की सांस रुक गई। ये, जिनसाद बोला, तुम्हें बरसों पहले चुन लिया गया था किरण, तो फ़कत भूली हुई थी। अब वो वक़्त आ गया है कि तुम खुद को पहचानो। किरण की आंखों में जैसे पूरा माजी उतर आया। वो दिन जब बचपन में उसने उस दरख्त के नीचे तन्हा रोते हुए एक ख्वाब देखा था, एक साया जो उसे लपेट में लेता था, वही ज़मरद जिन था। उसने आहिस्ता से आंखें बंद की और ख़ुद को गिरता हुआ महसूस किया। न मिट्टी की खुशबू, न हवा की सरसराहट, बस एक लम्स ठंडा, मेहरबान। ज़मरद ने उसे थाम लिया था। अब वो इंसानी दुनिया से अलग हो चुकी थी, लेकिन क्या वो खुश थी? क्या ये मोहब्बत मुकम्मल हो गई थी, या अब नई आजमाइशों का आगाज़ होने वाला था? अनार का दरख्त खामोश खड़ा था, मगर उसकी जड़ों में कोई नई शाख उग रही थी। किरण की आंख खुली तो उसके गिर्द सब कुछ बदला हुआ था। न कच्चा आंगन, न माँ की खांसी, न वो पुराना दरवाज़ा। अब वो किसी और ही दुनिया में थी। नीला आसमान, चमकते दरख्त, स्याह पत्थरों से बने रास्ते और हवा में खुशबू जो ना ज़मीन की थी ना इंसानी सांसों की। ज़मरद उसके सामने खड़ा था, लिबास सफ़ेद, आंखों में सुकून, मगर उसके अक्ब में कुछ साए खड़े थे, संजीदा चेहरे, खामोश और पुरअसरार। किरण घबरा सी गई। ये कौन है ज़मरद? ज़मरद ने आहिस्ता से कहा, ये मेरे कबीले के बुजुर्ग हैं। तुम्हारा जन्नती अहद अब शुरू होने वाला है। अहद? कैसा अहद? तब एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर अपनी आंखें किरण में गाड़ दी। उसकी आवाज़ सर्द और गूंजदार थी। अगर एक इंसान हमारी दुनिया में कदम रखता है तो उसे कीमत अदा करनी पड़ती है। किरण का दिल डूबने लगा। क्या कीमत? मैंने तो सिर्फ मोहब्बत का हाथ थामा था। ज़मरद ने उसकी तरफ देखा, कुछ कहने ही वाला था कि बुजुर्ग ने हाथ उठाया। मोहब्बत आसान नहीं बच्ची। तुम ज़मरद की अब मंगेतर हो चुकी हो, लेकिन अगर तुम्हारा दिल कभी वापस अपनी दुनिया की तरफ मुड़ा या तुमने उस अहद को तोड़ा, तो तुम सिर्फ जन्नती दुनिया से नहीं निकलोगी, बल्कि तुम्हारा जिस्म और रूह दो अलग दुनिया में कैद हो जाएगा। ये बात सुनकर किरण लर्ज़ सी गई। जिनसाद ने आहिस्ता से किरण का हाथ थामा। मैं तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा किरण। मगर किरण के दिल में एक तस्वीर उभरी। उसकी माँ जो शायद उसे आवाज़ें दे रही थी, बाप जो दरवाजे पर खड़ा उसकी राह तकता होगा। ज़मरद ने उसकी आंखों में देखा। अगर तुम अभी भी पछता रही हो तो तुम्हें वापस भेजा जा सकता है किरण, लेकिन एक बार जन्नती अहद पूरा हो गया तो तुम वापस नहीं जा पाओगी। किरण खामोश रही। उसकी सांसें भारी थी, दिल जैसे दो हिस्सों में बंट चुका था। तभी दरख्तों की सरसराहट में उसे किसी ने पुकारा, किरण। ये आवाज़ उसकी माँ की थी, मगर वो यहाँ कैसे? क्या ये फरेब था, या माँ वाकई उसके पुकारने पर उसकी दुनिया में झांक रही थी? ज़मरद ने फ़ौरन सर झुका लिया। तुम्हारा वक़्त कम है किरण, फैसला करो। किरण की आंखों में आंसू तैरने लगे। क्या वो अहद को निभा पाएगी, या मोहब्बत छोड़कर माँ के आंचल में वापस चली जाए? बुजुर्गों ने सब्ज़ पत्थरों से बना ताज उठाया और जिनसाद ने किरण से कहा, बस एक लफ्ज़ किरण, हाँ या ना। किरण की सांसें तेज़ हो चुकी थी। उसके ज़हन में एक तूफान था जिसमें सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये सच है? क्या मैं वाकई इस दुनिया का हिस्सा बन चुकी हूँ? ज़मरद ने उसका हाथ मजबूती से थाम रखा था। उसकी आंखों में इतनी शिद्दत थी कि किरण ने फ़ौरन नज़रें झुका ली। बुजुर्गों के चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी, कोई इत्मीनान नहीं था, बस एक खामोशी थी जो जादू से ज़्यादा दबाव का बायस बन रही थी। किरण ने सर उठाया और उसकी नज़रें दोबारा दरख्त के साए में छुपे चमकते अनारों की तरफ उठी।
وہ انار جو خوابوں میں اسے بلاتے تھے، کیا وہ اس نئے سفر کے لیے تیار تھی؟ نہیں، اب میں نہیں جا سکتی، کرن نے ہمت پکڑ کر کہا۔ میرے ماں باپ۔ زمرد کا چہرہ بے حس ہو گیا۔ بزرگوں نے سر جھکا لیا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ تم واپس جانا چاہتی ہو کرن؟ زمرد نے سوال کیا۔ اس کی آواز میں غم کا ایک سرگوشہ تھا۔ کرن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ زمرد کے سامنے کھڑی تھی، لیکن اس کے دل میں ماں کا چہرہ تھا، وہ دکھ، وہ درد، وہ زندگی جسے اسے چھوڑنا تھا۔ میرے ماں باپ، مجھے ان کی ضرورت ہے، وہ تمہاری دنیا کا حصہ نہیں ہیں، میں انہیں کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ کرن کی آواز میں لرزش تھی۔ زمرد نے آہستہ سے اس کے سامنے قدم بڑھایا اور اس کا ہاتھ اٹھا کر بولا، کرن، تمہارے ماں باپ تمہاری دعاؤں میں ہیں اور وہ ہمیشہ تمہیں اپنے دلوں میں رکھیں گے، لیکن یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے۔ اگر تم واپس جا کر ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تمہارا راستہ کھلا ہے، مگر تمہیں وہ محبت کبھی نہیں ملے گی جو تمہیں یہاں مل سکتی ہے۔ کرن کا دل ایک بار پھر لڑنے لگا۔ وہ زمرد کو دیکھ رہی تھی اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی راز اس سے چھپایا جا رہا ہے، جیسے جن ذات صرف اس سے نہیں بلکہ اپنی تقدیر سے بھی لڑ رہا ہو۔ تم میرے ساتھ کیوں آنا چاہتے ہو؟ کرن نے آہستہ سے سوال کیا۔ کیا یہ واقعی محبت ہے؟ جن ذات کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کسی خاموشی کی لہر دوڑ گئی، پھر بولا، یہ محبت نہیں کرن، یہ تمہاری تقدیر ہے۔ میں صرف تمہیں اپنی دنیا کی حقیقت بنانا چاہتا ہوں، لیکن تمہیں یہ فیصلہ خود کرنا ہے کہ تم کس راہ پر جانا چاہتی ہو۔ کرن نے گہری سانس لی۔ اس کے دل میں ایک کشمکش تھی، ایک جنگ تھی جس کے دونوں طرف محبت اور قربانی کھڑی تھی۔ ایک طرف ماں باپ کی دعائیں تھی اور دوسری طرف وہ جناتی محبت جو نہ ختم ہونے والی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ میں کیا کروں، کرن نے چپ چاپ کہا۔ میرے دل میں دونوں کے لیے جگہ ہے، لیکن میں نہیں جانتی کہ کیا صحیح ہے۔ جن ذات خاموش ہو گیا۔ اس نے کرن کے ہاتھ کو دھیرے سے پکڑ لیا۔ تمہاری تقدیر تمہارے ساتھ ہے کرن، تمہارا فیصلہ تمہارے دل کے مطابق ہوگا۔ بس یہ یاد رکھو، جو بھی راستہ تم چن لو، میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ کرن نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، جیسے اسے اپنے اندر کی طاقت کا پتہ چل چکا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی میں کوئی بھی فیصلہ آسان نہیں ہوتا، ہر راستہ اپنی قیمت رکھتا ہے۔ پھر اس نے مضبوطی سے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں زمرد۔ یہ کہنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، مگر جب اس نے یہ کہا تو اس کا دل ہلکا ہو گیا، جیسے اس نے وہ بوجھ اتار لیا ہو جو ہمیشہ سے اس کے اندر چھپا تھا۔ بزرگوں نے ایک بار پھر اپنے سر اٹھائے اور کرن کی طرف دیکھا۔ پھر ایک اور بزرگ نے کرن کے سامنے ایک انار رکھا جو کسی جادو سے زیادہ حقیقت کی مانند تھا۔ یہ تمہاری محبت کا انعام ہے کرن، تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تمہیں ایک نئی زندگی دے گا۔ کرن نے انار کو اٹھایا اور زمرد کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں اسے کسی نئی دنیا کی طرف کھینچ رہی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی کبھی بھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ کرن نے انار کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور جیسے ہی اس کے ہاتھ کی گرمی انار کی سطح کو چھونے لگی، درخت کے پتوں میں سرسراہٹ ہونے لگی، آسمان کا رنگ بدلنے لگا، جیسے پوری جناتی دنیا اس فیصلے کی گواہ بن گئی ہو۔ زمرد خاموش کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو لفظوں سے باہر تھا، فخر، دکھ، محبت اور جدائی۔ کیا ہم اب ہمیشہ ساتھ رہیں گے؟ کرن نے دھیرے سے پوچھا۔ جن ذات نے نظریں چرا لی۔ ہاں، لیکن جس طرح تم سوچ رہی ہو ویسا ساتھ شاید نہ ہو۔ کرن چونکی۔ کیا مطلب؟ تبھی بزرگ آگے بڑھے۔ ان کا چہرہ سخت تھا مگر آواز میں نرمی آ گئی۔ زمرد نے تمہیں جناتی عہد سے بچانے کے لیے اپنی روح کا حصہ قربان کیا ہے۔ تم رہو گی، تم جیو گی، مگر وہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکے گا۔ کرن کی آنکھوں میں دھواں سا بھر گیا۔ اس نے جن ذات کی طرف دیکھا جو اب آہستہ آہستہ دھند میں بدل رہا تھا، جیسے اس کا وجود، اس کی روشنی کسی اور جہاں میں تحلیل ہو رہی ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کرن چیخ پڑی۔ یہ میں نے نہیں چاہا تھا۔ تم نے کیوں کیا یہ سب؟ جن ذات مسکرایا، وہ مسکراہٹ جو کسی خواب میں چھپ کر رہ گئی ہو۔ کیونکہ تمہیں آزاد دیکھنا میری محبت ہے کرن، تمہاری ہنسی، تمہاری سانس، بس یہی میری دنیا تھی کرن۔ کرن دوڑ کر اس کے قریب پہنچی، مگر وہ اب صرف ہوا تھا، ایک سایہ، ایک خوشبو، ایک لمس۔
जो रह कर भी छू नहीं सकता था। अचानक किरण के गिर्द सब कुछ गूंजने लगा। नीला आसमान, सब्ज दरख्त, वो पत्थर, सब खत्म होने लगे। एक रोशनी का दायरा उसे घेरे में ले रहा था, जो उसे वापस उसके कच्चे आंगन, उस अनार के दरख्त तले ले जा रहा था जहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ था। जब किरण ने आंख खोली, वो अपने घर के सामने थी। माँ दहलीज पर बैठी थी और बाप कटोरे में पानी लिए दरख्त के साए में बैठा हुआ था। किरण दौड़ी, माँ से लिपट गई, आंखों से अश्क बह निकले, जैसे बरसों का बोझ दिल से उतर रहा हो। माँ ने हैरत से उसे देखा। कहाँ थी तू? किरण ने माँ का हाथ पकड़ा, उसके चेहरे पर बोसा दिया और सिर्फ इतना कहा, वो बस एक साया था माँ, जो मेरी मोहब्बत बनकर मुझे मुकम्मल कर गया। उस दिन के बाद किरण कभी अकेली नहीं महसूस हुई। वो अनार का दरख्त, जो अब पहले से भी ज्यादा हरा था, हर रात हल्की सी सरसराहट में जमरद की आवाज़ सुनाता, जैसे वो अब भी उसके आसपास हो। मोहब्बत जिस्मों की मुख्ताज नहीं होती। कभी कभी एक दरख्त के साए, एक हवा की खुशबू, एक अनदेखी कुर्बानी में हमेशा के लिए जिंदा रहती है। ये थी एक खामोश गांव की, एक नाजुक लड़की की और एक कुर्बान होती जन्नती मोहब्बत की दास्तान, अनार का दरख्त।